السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور تاجر برادری کے درمیان ملاقات۔ کامیاب مذاکرات کے بعد دکانیں صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ شاپنگ مالز پر پابندی برقرار رہے گی۔ تاجر برادری اور سندھ حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا۔ دکانیں صبح 6 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کھلا کریں گی، جبکہ شاپنگ سینٹر، مال کھولنے پر تاحال پابندی برقرار رہے گی۔ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، میرے لیے خاص طور پہ۔ اسی دوران آپ سب دوستوں کی مہربانی بھی ہے کہ آپ نے بڑی اسٹرانگلی ڈینائی کیا تھا وہ جو ٹیلی فون کے یہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا تھا، پتہ نہیں کس سے، آپ میں سے کسی نے اگر کوئی پیسے لیے ہیں دکان کھولنے کے لیے تو مہربانی کر کے مجھے بتائیں۔ وزیر اعلیٰ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ دکانیں اور مارکیٹوں میں SOPs پر عمل کرانا لازمی ہوگا۔ ہم نے تاجروں سے بات کی ہوئی ہے، تاجر بھائی ہمارے جو ہیں، دکاندار جو ہیں اس وقت شدید مالی مشکلات میں ہیں، ان کو کھولنے کے لیے ہمیں طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عوام کی صحت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے وقت بہ وقت بات کرتے رہے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ ایئرپورٹ کھولنے پر میں نے اعتراض کیا تھا۔ وفاقی حکومت رات کو کاروبار کھولنا چاہتی تھی، جس پر ہم نے اعتراض کیا۔ وفاقی حکومت نے ہماری بات تسلیم کی۔ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی۔ وفاق اور سندھ حکومت کے بعد پنجاب نے بھی کل سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے بعد کئی شہروں میں کاروبار تو کھل گئے ہیں، لیکن رش بڑھنے کی وجہ سے SOPs نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کا حکومتی اعلان۔ پنجاب کے 369 علاقوں جبکہ خیبر پختونخوا میں 177 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ حکومتی اعلان کے بعد پنجاب حکومت نے کاروبار کھولنے کا اعلان کیا۔ صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق پیر سے جمعرات تک صبح 8 سے شام 5 بجے تک کاروبار کھلے گا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور میں بھی بازار کھل گئے ہیں، لیکن بازاروں میں رش بڑھنے کی وجہ سے SOPs نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تاجروں کو دکانیں اور مارکیٹ شام 4 بجے تک کھولنے کی اجازت ہے۔ بلوچستان میں دکانیں اور مارکیٹ شام 5 بجے تک کھلیں گی، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار ہے۔ کورونا وبا پر اس وقت تک قابو نہیں پا سکتے جب تک عوام SOPs پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر کہتے ہیں کہ بڑے فیصلے ہو چکے، اب عمل درآمد کا وقت ہے۔ لوگوں سے لمبے عرصے تک روزگار نہیں چھینا جا سکتا۔ مزید کہا، تمام ملک بند کرنے کے بجائے مخصوص علاقوں پر فوکس ہوگا۔ سول اور عسکری ادارے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ بڑے پالیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں، مزید بھی اور کچھ ہوں گے، لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اموات ہو رہی ہیں۔ ہم نے جو ایکشن لینا ہے، بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے۔ ابھی تک ایک دن کی بھی ان کو بریک نہیں ملی ہے۔ روزانہ ہفتے میں 7 دن یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جتنے حفاظت کی جا سکے اس وبا سے اتنا ممکن کیا جا سکے۔ بلوچستان میں فلورز ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر فلور ملز مالکان نے منگل سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن بلوچستان کا موقف ہے کہ صوبائی حکومت نے بلا وجہ فلور ملز پر اوپن مارکیٹ سے گندم کی خریداری پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سرکاری گندم اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں فلور ملز کو فراہم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً آٹے کے نرخ بڑھانے پڑ رہے ہیں۔ بلوچستان میں گندم کی بین الاقوامی اور بین الاضلاع ترسیل پر دفعہ 144 کے تحت پابندی بھی عائد کی گئی۔ فلور ملز نے دوبارہ ہڑتال شروع کی تو صوبے میں آٹے کا ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔
بلوچستان میں فلور ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ مطالبات منظور نہیں کیے گئے، جس کے باعث فلور ملز مالکان نے منگل سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن بلوچستان کا یہ موقف ہے کہ صوبائی حکومت نے بلا وجہ ہی فلور ملز پر اوپن مارکیٹ سے گندم کی خریداری پر پابندی عائد کر رکی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے عبدالغنی کاکڑ سے۔ جی عبدالغنی کاکڑ، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں فلور ملز مالکان کے؟ دیکھیں، بلوچستان کی جو فلور ملز ہیں ان کے مالکان کی جو ایک نمائندہ تنظیم ہے، ان کی صوبائی حکومت کے ساتھ چند یوم قبل مذاکرات ہوئے تھے۔ ان مذاکرات میں حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ صوبے کے تمام جو فلور ملز ہیں ان کو ان کے کوٹے کے مطابق گندم فراہم کیا جائے گا، تاکہ اس وقت جو ایک بحرانی کیفیت ہے بلوچستان میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، اس میں کمی لائی جا سکے۔ لیکن یہ جو مطالبات سامنے آئے تھے فلور ملز کے، ان پر اعلانات کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، جس کے بعد فلور ملز کی جانب سے اب یہ موقف سامنے آیا ہے کہ وہ منگل سے صوبے بھر میں ہڑتال شروع کریں گے اور تمام جو فلور ملز ہیں ان کو احتجاجاً بند کیا جائے گا، کیونکہ ان کے بقول بلوچستان میں صوبائی حکومت نے دفعہ 144 کے تحت ان پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں سے بھی گندم نہیں خرید سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو سرکاری سطح پر گندم کی فراہمی کے حوالے سے بات کی گئی تھی، ان کے مطابق وہ ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہی ریٹس پر وہ آٹے کی جو فراہمی ہے وہ اوپن مارکیٹ کو شروع کریں تو ان کو خود اس پہ نقصان کا سامنا ہوگا، اور پھر ایک بحرانی کیفیت بھی سامنے آئے گی۔ پر الزامات یہ سامنے آئیں گے کہ فلور ملز کی جانب سے ریٹس بڑھائے گئے ہیں۔ تو یہ وہ مطالبات ہیں جو ان کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت آٹے کی یہ جو ایک کیفیت ہے یہ یقیناً لوگوں کی مشکلات میں اضافے کا سبب بنی ہے۔ مختلف علاقوں میں جو آٹے کی یہاں پہ اوپن مارکیٹ میں نرخ ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی یہ بھی شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ جو ریٹیل پرائس پہ یہاں پہ گندم کی فراہمی کی جا رہی تھی وہ بند کر دی گئی ہے۔ بین الاضلاع اس وقت ایک دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی گئی ہے، اسی لیے جو فلور ملز ہیں ان کو اب اوپن مارکیٹ سے بھی گندم جو ہے وہ نہیں مل رہی، اسی لیے یہ جو مطالبات ہیں ان کی جانب سے پیش کیے گئے تھے۔ جی بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ۔ حکومت کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں، لوٹ مار مافیا نے غصہ عوام پر اتار دیا۔ رمضان کے مہینے میں آٹا مہنگا کر دیا، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے طویل لاک ڈاؤن کے باعث مشکلات، اب غریب عوام کے لیے آٹا بھی مہنگا کر دیا گیا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار نے اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو بہانہ بنا کر 20 کلو آٹے کا تھیلا 35 روپے تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ عبدالرؤف مختار کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 1450 روپے فی من ہو گئی ہے۔ فلور ملز کو گندم خریداری کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ سرکاری گندم کا کوٹا بھی بند ہے۔ غریب عوام جائیں تو جائیں کہاں؟ 805 روپے میں ملنے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا اب 840 روپے میں ملے گا۔ سرکار کے گوداموں سے گندم مافیا چوری کر رہا ہے، لیکن جیبوں پر ڈاکہ ہمیشہ کی طرح غریب عوام پر ہی پڑے گا۔ فلور ملز مالکان نے غریب عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 35 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمت 805 روپے ہوگی۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں دن بدن اضافے نے غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آٹے کے دام بھی بڑھنے کو تیار ہیں۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 35 سے 40 روپے اضافے کا اعلان کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کل سے ہوگا۔ آٹے کے بڑھتے ہوئے ریٹس پر لاہور کے باسی غصے سے پھٹ پڑے، کہتے ہیں کبھی بحران کے باعث آٹا مہنگا ہو جاتا ہے تو کبھی گندم مہنگی ہونے سے غریب جائے تو کہاں جائے۔ جس کی 10,000 روپے تنخواہ ہے وہ گھر کا راشن پورا کرے گا، گھر کا کرایہ دے گا کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا۔ عوام کو ریلیف دیا جائے، ٹھیک ہے، مطلب جو غریب آدمی ہے اس کی سنی جائے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق آٹے کی قیمت میں اضافہ گندم کی قیمت بڑھنے پر کیا جا رہا ہے۔ فلور ملز کو گندم خریداری کی اجازت نہیں دی جا رہی اور فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا بھی بند ہے۔ حکومت فلور ملز کو گندم کی خریداری کی اجازت دے ورنہ آٹے کی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 1450 روپے فی من تک جا پہنچی ہے۔ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بھی آٹے کی قیمت بڑھانے کی تیاریاں۔ شہری کہتے ہیں پہلے ہی وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہیں، ان حالات میں آٹا مہنگا کرنے سے ان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔
सिंध में आटा फिर महंगा होने का इम्कान, गरीब परेशान। पंजाब के बाद सिंध में भी आटा महंगा होने के खतरात मंडलाने लगे। पहले ही लॉकडाउन के बायस शहरी सख्त परेशानियों में मुब्तला हैं। आटे की कीमत में मजीद इजाफा उनकी मुश्किलात को बढ़ा देगा। इसको सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले महीने भी इन्होंने यही ड्रामा किया था कि आटा सस्ता होगा, लेकिन नहीं हुआ। ये महंगाई करते चले जा रहे हैं। खीरानदोजी होती रहेगी और आटा महंगा होता रहेगा, आवाम ना संभलेगी ना हुकूमत संभालेगी। महंगाई के तले दबे हुए शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने गरीबों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। गरीब आदमी को तो मारने का वो है ना कि इसको भूख से मार दो, उसमें इतने इस्तात ही नहीं है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गुर्बत है और फिर आटा इतना महंगा खरीद रहा है वो, तो हालत ख़राब हो रही है गरीब की। तो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आवाम पिसती जा रही है। ये तो कर नहीं रहा कि कोई महंगाई में कमी हो जाए, किसी चीज़ में कमी हो जाए, कमी नहीं हो रही। दुकानदारों और आटे की चक्की मालकान का कहना है कि अभी तक तो आटे की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन चंद रोज में कीमतें बढ़ने का इम्कान है। कम से कम 5 रुपए आटे पे बढ़ेंगे। अगर यही मौजूदा हालात रहे और इसी तरह हमें गंदुम मिलती रही तो मजबूर है कि हमें 5 रुपए आटे पे रेट बढ़ाने पड़ेंगे ना। सिंध भर में 50 से 55 और 60 रुपए आटा फी किलो कीमत पर दस्तयाब है। गुज़िश्ता दिनों 7 अरब रुपए की गंदुम चोरी होने का इंकशाफ हुआ था। सूबे भर में गंदुम की अदम दस्तयाबी आटे की कीमतों में इजाफे का बायस बन सकती है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। मुल्क भर में जिले इंतजामिया मुतहरिक, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। छापों के दौरान हजारों बोरियां गंदुम और दीगर अशियाए खुरोनोश बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लगाम देने के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिले इंतजामिया ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान हजारों बोरियां गंदुम और दीगर अशिया बरामद कर ली। मुल्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर छापों के दौरान 40,000 बोरियां गंदुम बरामद की गई। इसके अलावा लियाकतपुर, खानपुर, रहीम यार खान, कसूर, तांदलियावाला में भी छापों के दौरान वाफिर मिकदार में गंदुम बरामद की गई। उधर सिंध हुकूमत ने भी सूबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कमर कस ली है और सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया है। नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 22,000 गंदुम की बोरियां बरामद करके गोदामों को सील कर दिया गया। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कहते हैं सूबे में 119 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटीज लगाई गई हैं। जहां भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत मौसूल हो रही है वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। उमरकोट में भी महकमा खुराक ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान हजारों बोरियां गंदुम बरामद कर ली हैं। लॉकडाउन में नरमी के असरात सामने आने लगे। 24 घंटों के दौरान 1991 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जाबाक अफराद की तादाद 639 तक जा पहुंची है, जबकि अब तक 29,465 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान होते ही कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 13,341 टेस्ट किए गए, जबकि 1,991 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलोचिस्तान में 1,935, इस्लामाबाद में 641, गिलगित बल्तिस्तान में 430 और आजाद कश्मीर में 86 अफराद मुहलिक वबा से मुतासिर हुए। कोरोना वायरस से मुतासिरा 8,023 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद कोरोना के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। चीन से जहाज मजीद 17 टन तिब्बी आलात और हिफाजती सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच चुका है। चीन से खरीदे गए सामान की बजरिया PIA पाकिस्तान मुंतकली का सिलसिला जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद आने वाले जहाज में 24 एक्सरे मशीन और उनके पार्ट्स भी शामिल हैं। सामान में टेस्टिंग के लिए 3,71,000 VTM, मुख्तलिफ अक़साम के तकरीबन 10 लाख मास्क भी बीजिंग से इस्लामाबाद लाए गए हैं। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद लाए गए सामान की ये 6ठी खेप है। दुबई से आने वाले पाकिस्तानी शहरी ने फैसलाबाद के करंतना सेंटर में सहूलियात के फुकदान की कली खोल दी। शहरी मोहसिन ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट बार बार तब्दील हो रही है। 7 दिन से करंतना में हूँ, नाक़िस इंतजामात से कोरोना मजीद फैल सकता है। बंदों का पॉजिटिव इस यहाँ से बाहर नहीं जा सकते आप इस दरवाजे से, ये चीज़
ये हालात है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मैं ऊपर लेके जाता हूँ कमरे में, यहाँ पे है। अब हो सकता है यार जो बंदा यहाँ पे पहले रह के गया उससे हो, वो सिम्टम्स यहाँ पे लगे हों, तो उससे ज़ाहिरी बात है वो हमें भी तो अफेक्ट करेंगे ना। आपने नीचे हालात देख लिए हैं किस तरह के, वॉशरूम यहाँ पे देखने वाले नहीं हैं, ये सीन है। सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे रखा हुआ उन्होंने, कोई किसी बंदे ने आके बताया नहीं है यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं है, ना डॉक्टर ने कोई आके तदाबीर बताई है हमें कि भाई हाँ ये करो। ये आपको कितने दिन हो गए हैं? 9 दिन हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर नहीं आपको आँख मिला? आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई मेडिसिन नहीं है। वैसे ही भेड़ बकरियों की तरह घर के अंदर इधर बिल्डिंग में इन्होंने धकेला हुआ है, जैसे हम कैदी हैं, हमने कत्ल किए हुए हैं। बाहर से इन्होंने लाख लगाया हुआ है। हम इन्हें ये कहते हैं कि हम रिलैक्स होंगे, अगर कोई मसला है तो रिलैक्स होंगे तो ठीक होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं। आप जहाँ तक भी ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हमें इस कैद खाने से निजात दिलाएं। भी लड़के मैंने यहाँ पे देखे हैं, वो यही बता रहे हैं कि यार हम फिट हैं, मतलब कोई साथ वो नज़र नहीं आए। यार हो सकता है बंदे को फ्लू हो या बीमार हो, हाँ कोई नज़ला हो, ठीक है। तो मतलब इसी तरह ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह छोड़ दिया उन्होंने अंदर, कोई एहतियात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेडीज़ भी यहाँ पे इसी तरह ही हैं। सरकारी लैब से मुस्बत आने वाला कोरोना टेस्ट प्राइवेट लैब में मनफी होने लगा है। सरकारी लैब में काम करने वाला अमला गैर तरबियत याफ्ता या प्राइवेट अस्पताल माफिया पर सरकारी हुकाम की नवाजियां शुरू हो गए। पाकिस्तानियों की जिंदगी से होने वाले खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन, सवालात जन्म लेने लगे हैं। पाकिस्तान में कोई भी शोबा हो, प्राइवेट माफिया सरकारी इदारों की नाअहली और करप्शन की गंगा में खूब हाथ धोता है। तालीम, खुराक, सेहत, कोई ऐसा बुनियादी शोबा नहीं जिसमें सरकारी इदारों की नाअहली ने प्राइवेट माफिया को फलने फूलने का मौका ना दिया हो। एक के बाद एक स्कैंडल्स ने पाकिस्तानियों को नफ्सियाती मरीज बना रखा है। पाकिस्तान का महकमा सेहत भी स्कैंडल क्वीन की तरह खबरों में तरोताजा रहता है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा करना हो या गैर कानूनी दरामद का धंधा हो, हर मैदान में सेहत सरकार करप्शन की नदियां बहा देती है। कोरोना वायरस के आने पर सरकारी इदारों की नाअहली ने एक बार फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों की लेबोरेटरी से मुस्बत आने वाले टेस्ट प्राइवेट लैब में मनफी होने लगे। अवाम परेशान है। सरकारी लैब में काम करने वाले अहलकार नाअहल, गैर तरबियत याफ्ता हैं या करप्शन की एक नई दास्तान रकम की जा रही है। एक नया स्कैंडल परवान चढ़ रहा है। सरकारी लैब से गलत रिपोर्ट्स बनाकर प्राइवेट अस्पताल माफिया की मार्केटिंग और आबियारी की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का कोरोना टेस्ट पहले सरकारी लैब से मुस्बत आना और बाद में प्राइवेट लेबोरेटरी से मनफी आ जाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने 2 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को काम से रोक दिया था। अगर मुल्क की अदालत आलिया इस तजाद से नफ्सियाती तौर पर मफलूज हो गई तो कोरोना टेस्ट के नाम से होने वाले इस भयानक मजाक से आम शहरी और इसके घर वाले किस कर्ब से गुजरते होंगे जब घर के किसी एक फर्द का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाए। मुआशरे में कोरोना के मरीज को अछूत बनाकर उसके तमाम घर वालों समेत अजीजो अकारिब और दोस्तों को शक की निगाह से देखा जाता है। सोशल बाइकॉट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मरीज प्राइवेट लेबोरेटरीज की भारी फीस अदा करके दोबारा टेस्ट करवाता है और वो रिपोर्ट मनफी आ जाती है। मरीज को तो शायद सुकून मिल जाए, लेकिन मुआशरती बाइकॉट खत्म नहीं होता। तन्हाई का शिकार खानदान खुदकुशी की तरफ माइल होने लगता है। कोई यकीन नहीं कर पाता कि कौन सी रिपोर्ट पर एतबार किया जाए। अवाम पूछती है कि हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में पैसों के साथ सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरी माफिया के हिर्स और तमा की भेंट चढ़ने वाले शख्स के नफ्सियाती कर्ब के लिए भी कोई इमदादी पैकेज है। कोरोना वबा के जेरे साया परवान चढ़ने वाले स्कैंडल को रोकने की कोई स्कीम या कोई मंसूबा तो जरूर होगा। आलमी वबा कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा फ्रंट लाइन सोल्जर्स को सलाम। पिम्स अस्पताल में इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलामी पेश की। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, खानेवाल के करीब मुसाफिर वैन मेलसी लिंक कनाल में जा गिरी। बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद डूब गए। जहां भाग अफराद को आहों और सिस्कियों में स्पुर्द खाक कर दिया गया।
सान्हा मेलसी लिंक नहर में जान की बाजी हारने वालों की नमाज जनाजा मेलसी में फैसल टाउन गोल चौक पार्क में अदा की गई, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफसोसनाक वाकया खानेवाल के करीब पेश आया था, जहां शेखुपुरा से मियां चन्नू आने वाली वैन मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए तलम्बा के करीब मेलसी लिंक कनाल में जा गिरी। बदकिस्मत वैन के तमाम सवार नहर में डूब गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थीं। वाकये के एक रोज बाद वैन अब्दुल हकीम पुल मुस्तफा आबाद से मिली। रेस्क्यू टीमों ने वैन को कनाल से निकाला तो 9 अफराद की लाशें भी मिली। लापता 2 अफराद की लाशों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वैन में सवार 4 अफराद का ताल्लुक मियां चन्नू जबकि 6 का ताल्लुक लैया से था। वैन में सवार अफराद शेखुपुरा में अजीज की फौतगी से वापस आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मत सवारों को इल्म न था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनके जनाजे उठेंगे। केमिकल डोर के खूनी खेल ने एक और मां के लखते जिगर की जिंदगी निगल ली। लाहौर में थाना इस्लामपुरा की हदूद में 17 साला उस्मान के गले पर कातिल डोर फिर गई। चंद ही लम्हों में हंसते भसते घर में सफ़े मातम बिछ गई। कातिल केमिकल डोर का खूनी खेल घरों के चिराग गुल करने लगा। कभी किसी का जवान बेटे के गले पर डोर फिरकर पल भर में आंगन उजाड़ देती है, तो कभी माओं को बच्चों के तड़पते लाशें उठाना पड़ते हैं। आज फिर लाहौर में कातिल डोर ने मां से उसका लखते जिगर छीन लिया। लाहौर में थाना इस्लामपुरा की हदूद में 17 साला उस्मान कातिल डोर के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया। डोर फिरने से इतना खून बहा कि उस्मान मौके पर ही दम तोड़ गया। कोरोना के बाइस लोग घरों में महदूद हुए तो पतंगबाजी का खूनी खेल रात दिन जारी हो गया, मगर इंतजामिया और पुलिस मौत का खेल खेलने वालों को रोकने में नाकाम नजर आती है। लाशें उठाती माओं का एक ही सवाल है, आखिर कब तक ये खूनी खेल जारी रहेगा। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही बाजारों की रौनकें बढ़ गई। क्वेटा में गरीब अफराद ने ईद की खरीदारी के लिए ऐसे बाजारों का रुख किया जहां पुराने कपड़े कम निर्खों पर फरोख्त किए जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकड़। ईद उल फितर के मौके पर नए कपड़ों की खरीदारी हर खास व आम की ख्वाहिश होती है, लेकिन बढ़ती हुई इस महंगाई में लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि नए कपड़े खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखती, इसीलिए पुराने कपड़े खरीद कर ही ईद का एहतमाम करती है। क्वेटा के मुख्तलिफ बाजारों में ऐसी कई दुकानें कायम हैं जहां पुराने कपड़े कम नर्ख पर फरोख्त किए जाते हैं और ईद के करीब आते ही गरीब और नादार लोगों का इन दुकानों पर रश बढ़ गया है। मजदूर तबके के लोग हैं, वो लोग इधर आ रहे हैं क्योंकि आजकल सिलाई 800 रुपये सिलाई है, 1000 रुपये 1200 रुपये सूट है, वो नहीं ले सकते तो इधर कबाड़ी की तरफ रुख करते हैं। इधर हम लोगों को ये फेरी वाले ले आते हैं, ये उधर बर्तन दे करके बर्तन के बदले में कपड़े ले आते हैं, जूते ले आते हैं, फिर हम लोग इसको थोड़ा सेट साट करके धोते हैं, सिलाई करके पटे हुए सिलाई करके इस्त्री करके फिर इधर गरीब लोग आते हैं, ईद के लिए भी काम देते हैं, वैसे पहनने के लिए भी काम देते हैं। ईद के लिए कम नर्ख पर दस्तयाब इन पुराने कपड़ों की खरीदारी के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चे भी इन बाजारों का रुख करते हैं। बाजार में ये सूट महंगे हैं, इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ, अपने लिए ले रहा हूँ और इसके लिए इन लोग ले रहे हैं। उधर हम 5000 का कमाई नहीं है तो 5000 का हमारा खर्चा हो जाता है, अभी ऊपर ईद आ गया, अभी हमको क्या करें हम। पुराने कपड़ों के ये बाजार गरीब और नादार लोगों की ईद की खुशियां कायम रखने के साथ साथ उनकी सफेद पोशी का बरम रखने का सबब भी बने हुए हैं। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। माँ तो माँ होती है, इसका कोई नेमुल बदल खालिके कायनात ने पैदा ही नहीं किया। ऐसी माएँ भी हैं जिनकी तारीख आलम में मिसाल नहीं मिलती है। सरजमीने करबला में उन माओं के हौसले को हमारा सलाम। खुदा की मोहब्बत देखना हो तो माँ की औलाद से मोहब्बत देखी जाए। एक माँ अपने इस्माइल को बचाने के लिए 7 बार सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ी थी। खालिक कायनात को माँ की यह मोहब्बत इतनी पसंद आई कि उसने फैसला किया कि माँ बेटे का ये वाक़या रहती दुनिया के इंसानों के लिए जिंदा रखूंगा, इसीलिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। तारीख कुछ आगे बढ़ती है और फिर इसी सफर में एक मंजिल करबला है। यहाँ कुदरत खुद हैरान हुए जा रही है। मैदान करबला में मोहब्बत और उल्फत की पैकर माएँ हैं, आज उनको क्या हो गया है। हर खेमा में बेटों की दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर कुर्बानी की तैयारी खुद माएँ कर रही हैं। हर माँ की ख्वाहिश है कि सबसे पहले जो फर्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो वो उसका नूर नजर हो। करबला का जो हर एक साहिब दिल कायल है, इसकी
शामिल है। यहाँ अली अकबर से कड़ियल जवान की वालिदा लैला हैं। यहाँ 6 माह के असगर की माँ भी है। इस माँ ने अजीम जहाद किया है। कमसिन नौजवान कासिम की माँ उम्मे फरवा हैं। यहाँ ओन मोहम्मद से बच्चों की माँ बीबी जैनब हैं। यहाँ हजरत वहाब कल्बी से जवान की माँ खुद से अपने बेटे को दूल्हा की तरह तैयार करके आई हैं। बुलंद हौसले मारिफत की ऐसी महराज, ये अमल सालिह की इंतहा, ये करबला की माएँ हैं। अज़्म जुरत की अजीम चट्टानें, दीन मुबीन की बुनियादों को मुस्तहकम करने वाली हस्तियाँ, मुआशरे में ख़वातीन के नए किरदार का रुख मुतय्यन करने वाली ये माएँ, बिला शुबह रहती दुनिया तक ऐसी ही माएँ तरबियत औलाद के लिए बेहतरीन नमूना हैं। पूरी कायनात में अगर किसी चीज का कोई नेमुल बदल नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है। इस मुआशरे में कुछ ऐसे बदनसीब अफराद भी मौजूद हैं जो माँ जैसी नेमत के होते हुए भी इस नेमत से महरूम हैं। माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है ताकि उसकी औलाद कामयाब हो जाए और किसी काबिल बन जाए। मगर माशरे में कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो कदमों तले जन्नत रखने वाली माँ को छोड़ देते हैं। तो आइए उन माँओं से आपकी मुलाकात कराते हैं जो साहिब औलाद होने के बावजूद भी बे औलादी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें भी ऐसे वक्त का सामना करना पड़े। मैं यही कहना चाहूँगी कि वो औलादें जो अपने वालिदैन को अपने घरों से निकाल देते हैं, ख़ास तौर पे माँओं को, माँ जैसी हस्ती को जिनके कदमों तले जन्नत है, ये सब लोग जानते हैं। वो सिर्फ अपना बुढ़ापा सोच लें कि एक वक्त उन पर भी आना है, यही वक्त उन पर आएगा तो सेम यही चीज़ उनके साथ भी दोहराई जाएगी। कहते हैं ना, माँ ठंडी छाँव की मानंद है। इसकी शफकत का एहसास जिंदगी के हर मोड़ पर होता है। इस अजीम हस्ती से मोहब्बत के लिए एक दिन तो क्या सारी जिंदगी मुख्तस कर दी जाए तो भी कम है। कहते हैं माँ दुनिया तो दुनिया मौत की आगोश में भी सो जाने के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ गो रहती है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद बदनसीब हैं वो बच्चे जो जीते जी अपनी माँ को मार देते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। पाक फ़िज़ाइया ने भी दुनिया की सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश किया है।
entire world battles against COVID-19 pandemic, Numerous lady doctors, nurses, and other female support staff are at the front line of this fight, protecting us at the cost of their maternal responsibilities. On this Mother's Day, we, the Airwomen of Pakistan, salute these valiant mothers for their indomitable will and unflinching devotion to duty in the fight against this serpentine pandemic, risking their today for our tomorrow. Happy Mother's Day. मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सकून पाती है माँ। माँ की मौत की आगोश में भी कब सकून पाती है माँ, जब परेशानी में हो बच्चे तड़प जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ, मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनो चैन से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ, जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का फूल, आंसुओं के साज पर बच्चे को बहलाती है माँ, जान कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है गीले में सो जाती है माँ, हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, अरे कितनी ही रातों में खाली पेट सो जाती है माँ, घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ, शादियां कर कर के बच्चे जा बसे परदेस में, अब दिल खतों से और तस्वीरों से बहलाती है माँ, अल्लाह इतनी सारी बेरुखी के बावजूद बद्दुआ देती नहीं, हरगिज़ न पछताती है माँ, साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को उम्र भर खिदमत का सिला एक फातिहा पाती है माँ, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, अरे कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, शुक्रिया हो ही नहीं
सकता कभी माँ का अदा, अरे मरते मरते भी दुआ जीने की दे जा, सबसे पहले जान देना फातिमा के लाल पर, रात भर ओनो मोहम्मद को ये समझाती है माँ, अल्लाह अल्लाह इत्तेहादे सब्र लैला ओ हुसैन, अरे बाप ने खींची सीना सीने को सहला। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भारत की चीन के साथ सरहदी इलाके स्किम सेक्टर में झड़प, लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल, फौजी भी जख्मी हो गए। फसादी मुल्क भारत खित्ते के अमन का दुश्मन, कोई हमसाया इसके शर से महफूज नहीं। सरहदी इलाके में भारतीय फौजियों की छेड़खानी, चीनी फौजियों ने मुक्कों और लातों से दुर्गत बना डाली। चीन के सरहदी इलाके में भारतीय फौजी और चीनी फौजी आमने सामने आ गए। झगड़े में मुक्कों और लातों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। दोनों अतराफ के फौजी जख्मी हुए। मुज़ाकरात के बाद लड़ाई का खात्मा हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2007 के बाद ये पहला वाकया है। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को चकवाल के शहरियों ने भी सराहा है। शहरी कहते हैं अवाम इस काविश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सफ़ेद पोश और मुस्तहिक अफराद की मदद करें। सच टीवी की इस बहुत अच्छी काविश को सराहते हैं। रोटी स्कीम जो उन्होंने शुरू की है, हम समझते हैं कि ये बहुत सारे लोगों का भला होगा। उन लोगों का सफ़ेद पोश का जो ख़रीद नहीं सकते हैं, लिहाजा आवाम को चाहिए कि इस स्कीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस कार्य खैर में सवाब भी कमाएं और दुआएं भी लें। की टोकरी सच न्यूज़ का एक बहुत अच्छा और एहसन इक़दाम है। इससे सफ़ेद पोश तबका इंतहाई मुस्तफ़ीद हो रहा है। इस अमल को जारी रहना चाहिए। जो जिस तरह के हालात हैं आजकल मुल्क में लॉकडाउन के, इस तरह के प्रोग्राम की और इस तरह की काविश की एक ज़रूरत थी मुल्क में। जो सच न्यूज़ चला रहा है ये एक ऐसा हम सच न्यूज़ नेकी की टोकरी के इस इक़दाम को सराहते हैं। हमारे माशरे में इस किस्म के इक़दामात की अशद ज़रूरत है। इस किस्म के इक़दामात से हमारे सफ़ेद पोश तबका की मदद की जा सकती है। खूबसूरत अदाकारी और मुनफरिद अंदाज़े गुफ्तगू से मद्दाहों के दिल में घर कर लेने वाले हर दिल अजीज फनकार अतर शाह अल-मारूफ जैदी तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से शुगर और गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने सोगवारान में अहलिया और 4 बेटे छोड़े हैं। चटनी में गिनूं कब आएंगे चटनियां रे, चटनी चटनी में गिनूं। शट अप! तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल? बड़े अफसोस की बात है, मिस्टर जेदी जैसी शख्सियत को पागल कह रहे हैं आप। जिंदगी भर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार अतर शाह खान अल-मारूफ जैदी मदाहों को उदास करके सफरे आखिरत पर रवाना हो गए। मैं कहता हूँ छोड़ दो, फोन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं फोन करूंगा, जरूर फोन करूंगा मैं। छोड़ो इसको। अरे यार क्या हो रहा है ये फोन कर रहे थे। शायरी, ड्रामा निगारी या फिल्म साजी, अजीम फनकार ने जिस मैदान में तबाह आजमाई की, कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। टेलीविजन किरदार जैदी को इस खुश असलूबी से निभाया कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। अतर शाह खान जैदी ने लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पेशावर से सेकेंडरी तालीम हासिल की और फिर कराची में उर्दू साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफत के शोबे में मास्टर्स किया। अतर शाह खान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल्स में इंतजार फरमाइए, हेलो हेलो, जाने दो, बर्गर फैमिली, आशियाना, आप जनाब, जैदी इन ट्रबल, प्रॉब्लम हाउस, हाय जैदी, कैसे कैसे ख्वाब, बा अदब बा मुलाइजा होशियार और दीगर शामिल हैं। 2001 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान टेलीविजन ने जब अपनी सिल्वर जुबली मनाई तो अतर शाह खान जैदी को गोल्ड मेडल अता किया। आपने इंसानों को तो स्केटबोर्ड पर मुख्तलिफ करतब करते देखा ही होगा। आज आपको मिलवाते हैं ऐसे जावा बर्ड से जिसे स्केटिंग करते देखकर माहिर खिलाड़ी का गुमान होता है।
आखिर में हम आपको छोड़े जाते हैं जिद्दी पांडा के साथ। अपनी जिद बनवाने के लिए क्या जतन करना पड़ रहे हैं आप भी देखिए।